Hello guys, welcome back to On Time Notes, and in this video we are going to see operating system structures. The system structure of an operating system is like a plan that shows how the OS is built and how its parts work together, and it organizes the operating system to make it easier to understand and modify. And the OS is built in smaller parts so that it is simple to manage, and this structure shows how different parts of the OS connect and work inside the kernel. ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम स्ट्रक्चर ये होता है कि लाइक अ प्लान, मतलब जो आपको बताता है कि कैसे कैसे क्या OS बिल्ट हुआ है एंड उसके पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं, वो सब अपने को सिस्टम स्ट्रक्चर बताता है. एंड वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे ऑर्गेनाइज करता है कि वो यूज़र को ईजी पड़ता है अंडरस्टैंडिंग, एंड अगर मॉडिफाई करना है तो उसके लिए भी वो ईजी हो जाता है. एंड जो ये OS रहता है वो स्मॉलर पार्ट्स में बिल्ड रहता है ताकि वो इजीली हम लोग मैनेज कर सके. एंड ये सिस्टम स्ट्रक्चर बताता है कि OS को कैसे डिफरेंट पार्ट्स में कनेक्ट करते हैं एंड वो कैसे कर्नल के अंदर वर्क करता है, उसका सब वर्किंग एंड कनेक्शन ये सिस्टम स्ट्रक्चर बताता है. नाउ विल सी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट इज सिंपल स्ट्रक्चर. Simple structure OS do not have well-defined structures, and it is small and easy to build, but this type of OS causes the entire system to crash if one of the user program fails. An example includes MS-DOS. In MS-DOS, application programs are able to access the basic input-output routines. Operating system structures के various types हैं, and first है simple structure. जो सिंपल स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर इतना वेल डिफाइंड नहीं रहता, एज ए छोटा रहता है तो उसको बिल्ड करना भी इजी होता है. लेकिन अगर ऐसे सिस्टम में एक भी प्रोग्राम अगर यूज़र प्रोग्राम अगर फेल होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम को वो फेल कर देता है. MS-DOS जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे कि बेसिक इनपुट आउटपुट रूटीन्स को एक्सेस करता है. सो दिस इज़ द डायग्राम फॉर द सिंपल OS स्ट्रक्चर. एप्लीकेशन प्रोग्राम, then it goes to resident system programs, and then MS-DOS device drivers, and then ROM BIOS device drivers. And resident system program can also directly interact with ROM BIOS device drivers and application with ROM BIOS. Okay, for application program to interact with ROM BIOS device drivers, it needs to interact with the resident system programs, and resident system programs further interacts with MS-DOS device drivers, and then MS-DOS device drivers interacts with ROM BIOS device drivers. So this is the simple OS structure. इस सिंपल OS स्ट्रक्चर में क्या है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम ROM BIOS डिवाइस ड्राइवर्स से इंटरेक्ट करता है. तो एप्लीकेशन प्रोग्राम पहले रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम से करेगा इंटरेक्शन, एंड देन रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम में द फर्दर MS-DOS डिवाइस ड्राइवर से इंटरेक्ट करेगा, एंड देन MS-DOS डिवाइस ड्राइवर फर्दर ROM BIOS डिवाइस ड्राइवर से इंटरेक्ट करेगा. Now we'll see advantages. Works quickly because there are few layers between the app and hardware, and easy to create for developers. So advantages ये है कि because उसमें layers कम है application and hardware के बीच में, तो वो जल्दी से काम quickly complete करता है, and developers को easy है create करने के लिए. Then disadvantages. The structure is very complicated as no clear boundaries exist between modules, and less secure and harder to fix errors. And disadvantage ये है कि structure complicated है because उन applications के बीच में कोई भी clear boundary exist नहीं करती, वो एकदम less secure है, और error अगर कोई आया तो वो fix करना बहुत मुश्किल है. Second operating system structure is layered structure. The operating system is divided into layers, each built on top of the other. Then each layer handles specific tasks and provides services to the layer above it. And the bottom layer, that is layer 0, is the hardware,
and the topmost layer, that is layer n, is the user interface. So layer स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको लेयर्स में डिवाइड किया जाता है एंड जो भी लेयर्स है उनको एक दूसरे पे बिल्ड किया जाता है. जितने भी लेयर्स है वो स्पेसिफिक टास्क हैंडल करते हैं एंड अपने ऊपर वाले लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो सबसे बॉटम लेयर जो है उसको लेयर 0, उसको एज ए हार्डवेयर भी बोल सकते हैं, एंड टॉप मोस्ट लेयर दैट इज लेयर एन, उसको एज ए यूजर इंटरफेस बोल सकते हैं. सो लेयर स्ट्रक्चर का एग्जांपल है यूनिक्स एंड वी कैन सी द डायग्राम हियर. That is layer 0 is hardware, then layer 1 is built on top of layer 0, then there are many such layers and layer n that is user interface. So यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं layered structure का डायग्राम. So first है layer 0 that is hardware and उसके टॉप पे बना है layer 1 और उसके टॉप पे ऐसे कई सारे layers है एंड उन layers ख़त्म होने के बाद लास्ट में जो layer आता है that is layer n, उसको एज ए यूजर इंटरफेस भी बोल सकते हैं. नाउ विल सी एडवांटेजेस. इजी टू फिक्स प्रॉब्लम्स सिंस इश्यूज कैन बी ट्रेस्ड टू अ स्पेसिफिक लेयर एंड सिंपल टू अपडेट और चेंज वन लेयर विदाउट अफेक्टिंग द अदर्स. सो एडवांटेज ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम या फिर इशू आ जाता है तो उसको इजीली हम लोग उसको ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक लेयर को पॉइंट करेगा कि ये लेयर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया है, तो हम लोग को इजीली पता चल जाएगी कि कौन से लेयर में प्रॉब्लम या फिर इश्यूज हुआ है. एंड अगर कुछ भी अपडेट या फिर चेंज करना रहेगा लेयर तो एंड डिसएडवांटेजेस आर स्लोअर बिकॉज डेटा हैज़ टू पास थ्रू ईच लेयर and careful planning is needed to design the layers properly. So disadvantages ये है कि जैसे कि डेटा को सारे लेयर से पास करना होता है तो थोड़ा वो स्लो हो जाता है एंड जो भी लेयर्स है उनको प्रॉपरली डिज़ाइन करने के लिए अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है. थर्ड इज मोनोलिथिक स्ट्रक्चर. द होल ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स एज वन बिग प्रोग्राम इन द कर्नल एंड ऑल द मेन टास्क लाइक मैनेजिंग मेमोरी and processes are combined in one piece of a code. So monolithic structure में क्या होता है कि पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एज एक ही प्रोग्राम वो रन करता है कर्नल के अंदर एंड जितने भी मेन टास्क है लाइक मेमोरी मैनेज करना या फिर प्रोसेस को मैनेज करना, उन सब को कंबाइन करके एक ही पीस ऑफ कोड में वो हो जाते हैं. नाउ विल सी एडवांटेजेस. Fast communication between components since everything is in one block and easy to build because it's all in one piece. So advantages ये है कि सारे के सारे components एक ही ब्लॉक में होने के कारण कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है. उसको बिल्ड करना भी ईजी है क्योंकि सारा एक ही ब्लॉक में वो बिलोंग करता है तो वो उसको बिल्ड करना भी ईजी पड़ता है. Now we'll see disadvantages. It is difficult to maintain as small error can crash the whole system and less secure because all components are tightly linked. So disadvantages ये है कि उसको मेंटेन करना एकदम डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि एक स्मॉल एरर के कारण भी वो पूरा सिस्टम को क्रैश कर सकता है एंड इतना सिक्योर नहीं है क्योंकि सारे कंपोनेंट्स टाइटली लिंक रहते हैं. फोर्थ इज माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर. Only the essential parts of the OS runs in the kernel and other functions are in a user space, and the kernel is small and additional services are added outside the kernel. Example of microkernel structure is Mac OS. So microkernel structure में क्या होता है कि जितने भी important parts है OS में सिर्फ वही कर्नल के अंदर रन होते हैं एंड बाकी जो सारे फंक्शंस है वो यूजर स्पेस में होते हैं एंड जो भी कर्नल रहता है वो स्मॉल रहता है तो जितने भी सारे एडिशनल सर्विसेज है उनको आउटसाइड द कर्नल ऐड करना पड़ता है. एंड माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर का एग्जांपल है मैक ओएस. नाउ विल सी एडवांटेजेस. इजी टू ऐड न्यू फीचर्स विदाउट चेंजिंग द कर्नल एंड सेफर बिकॉज इफ वन पार्ट क्रैशेस द रेस्ट ऑफ द सिस्टम इज फाइन. सो एडवांटेजेस ये है कि
जो भी न्यू फीचर्स ऐड करना है वो ऐड करना बहुत इजी होता है, क्योंकि कर्नल चेंज नहीं करना पड़ता है इसमें। एंड ये सेफ़ है बिकॉज अगर एक पार्ट कोई क्रैश हुआ तो पूरा सिस्टम को इफ़ेक्ट नहीं करता, सिर्फ वही पार्ट वो क्रैश हुआ है उसी को सिर्फ इफ़ेक्ट करेगा, वो हम लोग उसको अपडेट या फिर चेंज कर सकते हैं। एंड द डिसएडवांटेज इज़ स्लोअर बिकॉज पार्ट्स नीड टू कम्युनिकेट मोर ऑफन। एंड डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लो है, क्योंकि जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको बार बार कम्युनिकेट करना पड़ता है। And this was it for the operating system structures, and I hope you found this video helpful, and if you did guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and thank you for watching till here.